Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start solving this particular set. So this is a very lengthy set, a lot of information again, but then we realize this is a arrangement based set. So given the conditions that the questions are looking very straightforward, so we realize that if we crack open the set, then we'll not have any difficulty. But then also we realize from this fourth question that maybe everything will not come out to be unique. But then there are very limited possibilities going by the questions. But then because this is a dense set, in an ideal exam environment, out of the four sets, this set should ideally be attempted as the third or the fourth set, right, to just maximize your score. Now let's start reading this particular set. We have to ultimately do this. So what do we have here? So this is Ramesh is the owner of a small medicine shop. He's arranging the most commonly demanded OTC drugs for display. He knows from his experience that paracetamol, cough syrup, painkiller, and antacids are the four most popular types of drugs. He has 14 brands of medicine belonging to these four types. He arranges them on a shelf in a way that medicines of the same types are placed together in consecutive positions. So for example, cough syrup या painkiller कोई भी एक type जो है, yeah, these are four types. So कोई भी एक type के सारे medicines क्या होंगे? They will belong to one group, right? एक साथ आएंगे, right? In consecutive position without leaving any empty position between two brands. So जितने भी आपके brands हैं of the same type of medicine, उनके बीच में कोई gap नहीं होगा. They will occur consecutively. Now, there is at least one and at most two empty positions kept before and after each group of the same type. Now, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा ना, इसके बेस पे आप कुछ चीज़ें रियलाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास क्या है, चार टाइप्स है. लेट्स से डिनोट करते हैं इसको हम पैरासीटामोल, कफ सिरप, पेन किलर एंड फाइनली एंटासिड. नाउ इफ आई रियलाइज टोटल कितने आपके पास है, आगे जाके 21 पोजिशन ऑफ द शेल्फ फॉर डिस्प्ले ऑफ मेडिसिन एंड दे आर नंबर्ड 1 to 21 इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो टोटल 21 पोजिशन आपके पास हैं. उसमें से ये जो एक्चुअल में मेडिसिन जो पोजिशन ऑक्यूपाई करेंगे वो कितने ऑक्यूपाई करेंगे, दिस नंबर 14. सो 14 तो ये हो गया. ऑल्सो अभी इसने ये बोला कि किसी भी एक टाइप ऑफ मेडिसिन के पहले या फिर बाद में, राइट, देयर एटलीस्ट वन एंड एट मोस्ट टू एम्प्टी पोजिशंस के बिफोर एंड आफ्टर ईच ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ मेडिसिन. तो अगर मैं चार मेडिसिन को काउंट कर रहा हूँ, चार टाइप्स को, तो 14 तो ये हो गया. नाउ बिकॉज कोई भी दो टाइप्स कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन या एटमोस्ट टू का गैप होना चाहिए. तो व्हाट आई कैन सेफली से कि एटलीस्ट वन का तो गैप होगा ही. तो 14 + 5 इज 19. सो 19 तो अकाउंटेड फॉर है इंक्लूडिंग दिस वन गैप्स. दो एक्स्ट्रा गैप्स आपके आने चाहिए, बट वो दो एक्स्ट्रा गैप्स कभी भी एक साथ एक ही जगह पे नहीं आएंगे. फॉर एग्जांपल, ये कहीं नहीं हो सकता कि आपका यहाँ पे लेट्स से पैरासीटामोल एंड कफ सिरप के बीच में आपके दो और गैप बढ़ जाए, तीन आ जाए, बिकॉज तीन पॉसिबल नहीं है. उसने बोल रखा है आइदर इट इज 1 और इट इज 2. तो वो जो दोनों आपके रिमेनिंग गैप से 21 बनाने के लिए दे हैव टू अकर एट टू डिफरेंट प्लेसेस. सो आपको एक कहीं पे डबल वाला गैप चाहिए और एक और फिर कहीं पे डबल वाला गैप चाहिए. एंड दिस इज हाउ द सेट विल लुक लाइक. हमें भी यही अपने को फिगर आउट करना है कि ये पैरासीटामोल, CS, PK और A में इनके बीच में भी क्या ऑर्डर है, एंड ऑल्सो विच ब्रांड्स आउट ऑफ दोज 14 ब्रांड्स, विच ब्रांड्स बिलोंग टू विच कैटेगरी या विच टाइप ऑफ medicines. So this is the basic layout of this particular set. I hope you have followed till this particular point. Now we have these many conditions. So a lot of conditions are there, the 14 conditions, and on the basis of this we have to figure out the positions as well as the category for each of the brands. Now let's make a table out of this and let's start writing this one by one. Maybe some statements are more useful than the others, so we'll have to decide on the order. So that is a basic difficulty in LR, right? Now let's first read the first statement, right? So brands GDH have been placed in consecutively numbered position in increasing order after all the paracetamol, painkiller and cough syrup. Now what do we deduce from here? ये बोलता है कि G, D and J have been placed consecutively in numbered positions in an increasing order after all the paracetamol, painkiller and cough syrup. That means I can simply conclude कि ये जो तीन आपके brands है, these belong to the antacid family, right? Antacid वाला type है. So let's just write this down. Paracetamol है, painkiller है, then
कफ सिरप है, इनके बाद में आपका एंटासिड आएगा, तो एंटासिड के ग्रुप में कौन सा है आपका, जी है, डी है और जे है, दीज बिलोंग टू द एंटासिड्स। नाउ दिस पॉइंट इज डन, एंटासिड आने वाला है। एंड इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एंटासिड जो होगा, जैसे 4 ग्रुप्स आपके आने थे राइट, यहाँ पे हमने क्या करा था, एंटासिड या जो भी हमने ये तो रैंडम लिखा था, ये 4 जो आपके टाइप्स ऑफ मेडिसिन है उसमें ऑर्डर कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसमें 4th आपका जो टाइप आने वाला है, सबसे लास्ट में कहीं पे दिखने वाला है, वो क्या दिखेगा आपका, एंटासिड दिखेगा। एंड उसमें क्या आएंगे, जी, डी एंड जे आएंगे। नाउ गैप्स वाला पार्ट अपने को थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई लास्ट में एंटासिड अगर आएगा तो एक गैप तो देखो कंफर्म है राइट, एक गैप आपका यहाँ पे एंटासिड के बाद, दिस इज कंफर्म। क्या 2 गैप होगा या बीच में कहीं पे 2 गैप होगा, दिस विल फिगर आउट लेटर इन द स्टेटमेंट्स। सो दिस इज हाउ द स्टेटमेंट लुक लाइक। नाउ सेकंड पोजीशन ऑन द सेम हैंड क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एम्प्टी पोजिशंस इमीडिएटली सक्सीडेड बाई जे, सो जे के बाद में इन्हीं ग्रुप्स की बात कर रहा है, जी, डी एंड जे, सक्सीडेड बाई जे इज लेस दैन द नंबर ऑफ एम्प्टी पोजिशंस इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई जी। तो इसका एक कंक्लूजन तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि ये जी, डी, जे में जे के बाद में खाली है राइट, उसी के बाद एम्प्टी पोजिशन है, तो आउट ऑफ दीज 3 जे वुड बी इन द 3rd पोजिशन एंड the number of empty position immediately succeeded by J, that is followed by J यहाँ पे, is less than the number of empty positions immediately preceded by G. That means out of these 3 G हमारा टॉप पोजीशन पे होगा, G के ऊपर हमारा एक्चुअली में मिसिंग पोजीशन होगा राइट। और ये बोल रहा है कि J के नीचे जितना स्पेसेस वेकेंट है दैट इज लेस दैन द नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसेस अबव G। तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब आपका G के ऊपर 2 स्पेसेस एम्प्टी हो और जे के नीचे आपका एक स्पेस एम्प्टी हो, क्योंकि किसी भी जैसे बाद में किसी भी टाइप ऑफ मेडिसिन के किसी बाद में या फिर किसी के पहले, उस टाइप के पहले आइदर इट इज 1 गैप और इट इज 2 गैप, ये हमने पहले ही स्टैब्लिश कर रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे जे के बाद अगर गैप कम आना है जी से, जी के ऊपर वाले से, तो यहाँ पे 1 गैप होगा और यहाँ पे 2 गैप होगा। दैट मीन्स आई कैन नाउ सिंपली से कि यहाँ लास्ट में जो 21st पोजीशन है दिस विल बी एक्चुअली वेकेंट, और ये जो 3 पोजीशन है दिस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द एंटासिड। और एंटासिड में आपका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे जे होगा, और जो बचा हुआ अल्फाबेट था दैट इज डी, ये आपका यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। एंड दीज 3 बिलोंग टू द एंटासिड्स राइट। सो दिस इज डन। नाउ जी के ऊपर हमें हाँ अगेन ये भी पता है कि यहाँ पे आपके 2 खाली स्पेसेस आने वाले हैं राइट, फेयर एनफ। तो यहाँ से अब कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा, दिस इज गारंटीड। सो ये स्टेटमेंट हो गए। नाउ अगर आप थोड़ा सा एंड में हो, यहाँ पे एंड में हो तो आपको यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट विल डिसाइड कि किस टाइप के मेडिसिन में कितने आपके ब्रांड्स बिलोंग करते हैं और उनका ऑर्डर क्या आने वाला है। सो इफ आई लुक एट दी स्टेटमेंट, लेट्स से 12th एंड मे बी 13th और ऑल्सो 14 में भी। नाउ 14th स्टेटमेंट अगर देखो आप पहले, सबसे 14th स्टेटमेंट तो क्या बोलता है, आइदर लेफ्ट और राइट एंड ऑफ द शेल्फ। तो हमारे लिए एक्चुअली लेफ्ट एंड और राइट एंड ये है, हमने उसको वर्टिकल ऑर्डर में बना दिया है। दिस वाज एक्चुअली इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, बट स्क्रीन के ओरिएंटेशन की वजह से हमने इसको वर्टिकल ऑर्डर में बनाया। सो दिस इज द एक्चुअली द लेफ्ट एंड एंड दिस वुड बी योर राइट एंड। सो इसने क्या बोला, आइदर लेफ्ट और राइट एंड ऑफ द शेल्फ बट नॉट बोथ हैज टू एम्प्टी पोजिशंस। तो आइदर लेफ्ट एंड या फिर राइट एंड में से किसी एक में 2 एम्प्टी शेल्फ आने चाहिए बट नॉट बोथ। तो देखो राइट एंड में तो आपका एक ही एम्प्टी शेल्फ आया है, दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड कि यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग के 2 आपके जो लेफ्ट एंड पे आपके 2 शेल्स होंगे दीज हैव टू बी एम्प्टी। सो ये आपका एक्चुअली में फिक्स हो गया। तो अब जैसे कि याद करो, ये वाला आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो हमने डिसाइड करा था ना कि यहाँ पे वो जो 2 एम्प्टी पोजीशंस और बढ़ने वाली थी वो कहाँ बढ़ी, एक तो एंटासिड के पहले बढ़ गई, सो यहाँ पे 2 का गैप हुआ, एंड एक आपका सबसे स्टार्टिंग में बढ़ेगा। हाँ यहाँ पे ये नहीं पता मेरे को कि अभी यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा कैटेगरी है, बट जो भी कैटेगरी होगा XYZ उसके पहले यहाँ पे आपका 2 गैप है, क्योंकि यही आपका स्टार्ट कर रहा है पोजीशंस को राइट। सो यू विल कीप दिस इन माइंड। सो दिस 14 स्टेटमेंट इज डन। अच्छा, व्हाट अबाउट 12th एंड 13th? 12th क्या बोलता है, if we select any 2 types of medicines, the number of brands in one type differs from the other type by either 0 or 1। इसका मतलब वो जो 4 टाइप्स हैं जैसे P, PK, CS एंड A, ये चारों टाइप में जो नंबर ऑफ मेडिसिन है बिलोंगिंग टू ईच टाइप, किसी भी 2 के बीच में जब आप नंबर ऑफ मेडिसिन के बीच का डिफरेंस निकालोगे इट हैज टू बी आइदर 0 और 1। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लॉजिकली बोल सकते हो कि बहुत क्लोज होने वाले हैं। सो
लेट्स ब्रेक दिस 14, क्योंकि 14 इज अ टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन. 14 को आपको 4 नंबर में ब्रेक करना है, सच दैट किसी भी दो में, अगेन एनी टू, आप जब डिफरेंस निकालोगे उनमें नंबर ऑफ मेडिसिन का, आइदर इट हैज टू बी 0 मतलब इक्वल आ जाए, या फिर द मैक्स डिफरेंस कैन बी 1. सो इफ यू थिंक फॉर अ वाइल, आप नोटिस करोगे द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ व्हाट, वी हैव 3 एंड 4, तभी आपका पॉसिबल होगा, बिकॉज 14 का सम भी बनाना है, और किसी भी दो में अगर आप डिफरेंस निकालो तो आपका एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम आपका 1 हो सकता है, आइदर इट इज 0 और 1, तो दिस विल गेट सेटिस्फाइड. सो यही हमारा एक्चुअली में नंबर ऑफ मेडिसिन होने वाले हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स होने वाले हैं फॉर ईच टाइप ऑफ मेडिसिन. सो दिस 12th स्टेटमेंट इज एक्चुअली डन. What about 13th? If we look at the positions on the shelf sequentially, no two medicines placed one after the other have the same number of brands in them. No two types of medicines placed one after the other have the same brands in them. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टाइप्स है उनके जो नंबर ऑफ ब्रांड्स होंगे, अगर हम कंसेक्यूटिव ऑर्डर में देखेंगे तो नो टू कंसेक्यूटिव टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैव द सेम नंबर ऑफ ब्रांड्स. इसका मतलब ये निकल के आता है कि जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, सो कंसेक्यूटिव जब भी देखेंगे तो डिफरेंट आएगा. सो आइदर इट इज 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, या फिर 4 फॉलोड बाई 3 4 फॉलोड बाई 3. इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर आना पड़ेगा अगर हम ब्रांड्स के वो टाइप्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ब्रांड्स इन ईच टाइप उस ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता है कि लास्ट में जाके एंटासिड्स का नंबर एक्चुअली में कितना है, 3 है. दैट मीन्स इसमें से कौन सा ऑर्डर उठने वाला है आपका, 4 3 4 3. दैट मीन्स अगेन एक चीज़ ये डिसाइड हो गई कि 4 3 4 3 में आपका स्टार्टिंग में यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड तो आपका ब्लॉक्ड है, दैट मीन्स दीज पोजिशंस विल बी ऑक्यूपाइड, दिस 1 2 3 एंड 4, राइट. ये किसी एक से ऑक्यूपाइड होंगे, ये अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि किससे ऑक्यूपाइड होंगे, बट 4 के बाद फिर आपका एक गैप आएगा, बिकॉज अब हमेशा एक सिंगल गैप आएगा, जो डबल गैप थे वो हमने पहले ही काउंट कर लिए. तो एक सिंगल गैप आएगा, उसके बाद आपका ये 3 पोजिशंस ऑक्यूपाइड होंगे, दिस दिस एंड दिस. उसके बाद अगेन फिर एक स्पेस होगी यहाँ पे इनके बीच में, सो दिस इज वेकेंट, और दिस इज 1 2 3 एंड 4. दीज विल बी ऑक्यूपाइड बाई 4 ब्रांड्स. So this is what the number of brands in each type of medicine is there. ठीक. So this is also the 13th statement. Now अगर आप नोटिस करो अब यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स को I would like to see these statements. So 9th, 10th, 11th. Right, 9th, 10th, 11th and also this 5th statement. Because all of these statements, अगर आप closely पढ़ोगे, we will read this. अगर आप क्लोजली पढ़ोगे, दीज हैव टू डू समथिंग विथ पैरासिटामोल. नाउ जैसे 5th स्टेटमेंट क्या बोलता है, द शेल्फ पोजीशंस ऑफ पैरासिटामोल इज मोर देन दैट ऑफ पेन किलर. तो एक बात तो क्लियर है, या जो आपका पैरासिटामोल है ये आपका पेन किलर के बाद में आना चाहिए. द शेल्फ पोजीशंस ऑफ ऑल द ब्रांड्स ऑफ पैरासिटामोल टाइप आर ग्रेटर देन पेन किलर. तो पैरासिटामोल आपका पीके के बाद आना चाहिए. अच्छा, सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली डन. सो विल कीप क्रॉसिंग ऑल दी स्टेटमेंट्स आउट, बिकॉज बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, इट्स नॉट रीड देम अगेन एंड अगेन. सो उसके लिए हमने क्रॉस आउट कर दिया. सो दिस इज स्टेटमेंट डन. नेक्स्ट, ब्रांड ए एंड ई आर ऑफ द सेम टाइप ऑफ मेडिसिन, दे आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप फ्रॉम ब्रांड ई. तो हम एक चीज कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ से कि ए एंड एक्चुअली ई बिलोंग टू वन ग्रुप, राइट. they are of a different type from brand B. So B इनके ग्रुप का पार्ट नहीं है. If I just simply write this, B is not a part of A and E का ग्रुप. Then 10th point, medicine brands A and N have been placed on 2 consecutive positions, right. तो इसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि A and N आपका consecutive positions पे आएंगे, right. So A and N, so A and N have to be together. Next, position number of brand H is greater than that of brand N and both of them are of type paracetamol. Now ये अगेन इन्हीं चीज को कनेक्ट करता है. H की पोजीशन क्या होनी चाहिए, N से ऊपर होनी चाहिए. तो H की पोजीशन अगर N से ऊपर होनी है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, बट व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज ये ए ई सेम टाइप का है. ए और एन आपका कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए, और
एच का ब्रांड वैल्यू आपका एन से ऊपर होना चाहिए, मतलब ब्रांड जो आपका नंबर है वो ऊपर होना चाहिए, बट दीज बिलोंग अगेन टू द सेम टाइप, दैट इज पैरासिटामोल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्चुअली ये जो आपके चारों मेडिसिन है, दैट इज ए, ई, एन और एच, ये सारे ही आपके कौन से टाइप के मेडिसिन हैं, पैरासिटामोल, राइट। तो एज अ ग्रुप ही आने वाला है। अब अगर आप नोटिस करो, ये टोटल आपका काउंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 4, 3, 4 और 3 था। तो ये वाला जो ग्रुप है या तो यहाँ पे होगा फर्स्ट वाले में, या तो यहाँ पे थर्ड वाले में होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसको पैरासिटामोल बोला तो फिर पैरासिटामोल तो पेन किलर के बाद में आना चाहिए था, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। हेंस आई कैन कंक्लूड कि ये जो आपका पूरा टाइप है, दैट इज AENH, ये आपका यहाँ पे 4 पोजिशंस ले लेगा एंड दिस विल बी योर पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, राइट। अब इनमें भी एक्चुअली में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बिकॉज आपका AN एक ऑर्डर में आना चाहिए, AN एक ऑर्डर में आएगा एंड H उसके बाद में आएगा, किसके बाद, HN के बाद में आएगा। तो लेट्स से अगर आप बहुत सारे ऑर्डर्स लिखना स्टार्ट करो, जैसे कि A और N, मान लो आपने कंसेक्यूटिव ऑर्डर लिखा, राइट, ए और एन अगर आपने कंसेक्यूटिव ऑर्डर लिखा, इसके बाद आपका एच आएगा। नाउ ई के बारे में एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आपको दिया नहीं है, राइट। तो ई कहीं पे भी हो सकता है। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे ई लिख लिया, एक पोजीशन ही हो सकती है। फिर इसी तरीके से ए और एन आपने लिखा और एन के बाद आपने एच लिखा। अब ई आपका ए के पहले भी हो सकता है, यहाँ पे इनके बीच में भी हो सकता है, मे बी यहाँ पे आपने ई लिखा, या फिर ए और एन और एच के बाद में ई हो सकता है। So we are looking at 3 possibilities. Also यहाँ पे A and N have been placed on 2 consecutive positions लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी तो कहीं नहीं बोला है कि आपका A फॉलोड बाय N होगा, तो इसकी भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक्चुअली जैसे इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे मैं N और A लिख सकता हूँ, यहाँ पे H N E, इसी तरीके से यहाँ पे N और A लिख सकता हूँ और यहाँ पे E N H, सिमिलरली यहाँ पे N और A लिख सकता हूँ और यहाँ पे E और H। सो वी लुकिंग एट 6 पॉसिबल केसेस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ANH ही यहाँ पे पूरा पूरा फिल होने वाला है, इसके 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनने वाले हैं। सो लेट्स नॉट राइट दिस डाउन अगेन, यही है आपके वो 6 केसेस, बट हाँ यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि पैरासिटामोल आएगा। सो दिस 9 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट, 11 स्टेटमेंट आर टेकन केयर ऑफ कंप्लीटली। नेक्स्ट अब क्या बचता है आपके पास, लेट्स गो टू दिस थर्ड स्टेटमेंट, ऑर्डर में चलते हैं। मे बी ब्रांड्स K and C are placed on consecutive positions in increasing order of position value. तो K and C are placed on consecutive position in increasing order of position value। इसका मतलब K will be followed by C, या एज अ ग्रुप आएगा, एक ही साथ में आएगा, और K के बाद में आपका C आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन डन। फोर्थ, पोजीशन नंबर ऑफ ब्रांड M is 3 more than that of brand K. Now this looks interesting. इसने बोला कि पोजीशन नंबर ऑफ ब्रांड M is 3 more than that of brand K. 3 मोर का मतलब क्या होगा, K के बाद 3 पोजीशंस, 1, 2 and 3, यहाँ पे किसको आना पड़ेगा, M को आना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि इनके बीच में C और M के बीच में जो ये पोजीशन है, दिस इज अ वेकेंट पोजीशन, ये क्रॉस वाले हैं या फिर कोई एक दूसरा ब्रांड इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। सो अभी मैं इसको डैश डाल दे रहा हूँ, बट हाँ ये ऑर्डर आने वाला है, M जो है K के 3 पोजीशंस के बाद आएगा। सो दिस इज ऑल्सो डन। 6 स्टेटमेंट, पोजीशन नंबर ऑफ ब्रांड F and L आर लेस देन दैट ऑफ ब्रांड M। मतलब अगेन M के ये जो पोजीशन है आपकी F और L, ये ऊपर आएंगे, राइट। F and L हैव टू बी अबव M, राइट। ऑल्सो ये भी तो आप बोल सकते हो F and L उससे ऊपर आएंगे, तो ये दोनों यहाँ पे फिट नहीं हो सकते, मे बी एक हो सकता है, बट एटलीस्ट आपका M के ये दोनों ऊपर ही आएंगे, M के नीचे नहीं आएंगे। दिस इज टेकन केयर ऑफ। ब्रांड F इज नॉट एडजेसेंट टू एनी एम्प्टी पोजीशन, तो F जो है वो आपका एम्प्टी पोजीशन के एडजेसेंट नहीं होगा ना। इसको थोड़ी देर में देख लेंगे टू फिगर आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, बट यहां से एक चीज समझ में आती है। देखो पैरासिटामोल इज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ, राइट। अब ये जो आपका M है, इसके ऊपर अगर आप नोटिस करो तो K, C, F, L सब आने वाले हैं, राइट। 4 तो आपको ऑलरेडी मिल गए इसके ऊपर आने वाले। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो M है ना, ये आपका इस टॉप वाले का पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपने इस टॉप वाले में बोला तो 4 ही तो हैं। अगर आपने इन 4 वाले में से बॉटम में भी अपने M रखा तो उसके ऊपर 4 पोजीशन मिलेंगी ही नहीं KCFL के लिए। दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड कि M जो होगा वो इस 3 वाले ग्रुप का पार्ट होगा। अब वो कहाँ होगा उसको भी सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल M और K के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। अगर आपने M को इस 3 के ग्रुप में यहाँ पे रखा, 2 का गैप रखने के लिए आपको इस क्रॉस वाले पोजीशन पे K रखना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल।
अगर आपने m को यहाँ पे रखा तो एक स्पेस के बाद एक क्रॉस पे फिर आपको c को रखना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो m के लिए एक ही पोजीशन बचती है, दैट इज m हैज टू बी हियर। एक आपका क्रॉस रहेगा तो यही वो पोजीशन थी, और इसके ऊपर फिर आपका c आ जाएगा और इसके ऊपर आपका k आ जाएगा। एंड ऑल्सो m के ऊपर आपका f और l को आपको प्लेस करना था, बट f वॉज नॉट एडजेसेंट टू एनी एम्प्टी पोजिशन, तो आपका f थर्ड पोजिशन पे नहीं आएगा, f फोर्थ पे आएगा एंड l आपका थर्ड पोजिशन पे आ जाएगा। अब इसमें आपका नेक्स्ट पार्ट अगर देखो तो मेडिसिन ऑफ ब्रांड आई इज नॉट अ पेन किलर। तो देखो आपका बचा क्या है, अगर आप अल्फाबेट्स को क्लोजली देखोगे ना तो आई और बी बचा हुआ है, तो ये 9th और 10th पोजीशन पे आई और बी आएंगे। और ये बोल रहा है कि आई इज नॉट अ पेन किलर, मतलब आई कैन कंक्लूड कि ये जो ऊपर वाला ग्रुप था, ये जो 4 वाला ग्रुप था, दिस वाज एक्चुअली अ पेन किलर। और पेन किलर अगर ये हो गया तो आपका जो बचा हुआ है एंटासिड, पैरासिटामोल, पेन किलर एंड ये कफ सिरप, सो दिस ग्रुप विल बी कफ सिरप। और आई एंड बी इन एनी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनी मोर कंडीशन टू फिगर दिस आउट। सो आई जस्ट से दिस इज आई बी और दिस इज बी आई। सो ये हो गया आपका एक्चुअली में डन। एंड अभी भी आपके पास एक्चुअली अरेंजमेंट की देखोगे तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं, बट लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स कि हमें क्या काउंट करना है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली डन विद द अरेंजमेंट पार्ट। नाउ इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द मशीन्स बी अरेंज्ड ऑन द मशीन, सॉरी medicines, right? So this has to be medicines be arranged on the shelf। तो अगर आप इनका अरेंजमेंट चेक करो तो कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे। तो यहां से अगर आप नोटिस करो पॉसिबिलिटीज है कहाँ, एक तो यहाँ पे है कि आई एंड बी को आप कितने दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, राइट, आई बी या फिर बी आई। और यहाँ पे जो आपकी ये 4 पोजीशंस हैं, इनका हमने एक्चुअली में ऑर्डर पूरा पूरा लिख दिया है। वी कैन अरेंज देम इन व्हाट 6 डिफरेंट वेज। तो हर एक केस के करस्पॉन्डिंग है आई बी 2 तरीके से अरेंज होगा। तो बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताता है कि यहाँ पे अरेंजमेंट करने के 2 तरीके हैं, और यहाँ पे इन 4 पोजीशंस को अरेंज करने के आपके पास 6 तरीके हैं। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 2 क्रॉस 6, एंड दैट वुड गिव यू द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, दैट इज 12, right? I hope you understood this. Now moving on to the second problem, which of the following medicines is not a painkiller? So painkiller कौन सा मेडिसिन नहीं है, तो painkiller हमारे हिसाब से क्या आया था, LFKC। So LFKC, so A is actually not a painkiller, so answer is option A. Now what is the sum of the position numbers of 7 empty positions? This we know uniquely. So कौन कौन से empty position है, first, second, then 7th, then 11th, फिर यहाँ पे 16th and 17th, and finally 21. So you'll have to simply add them. So 1 plus 2 is 3, 7 plus 3 is 10, 10 plus 11 is 21, 21 is there, then 16 and 17 is 33, then finally 21. So 3, 4, 5, 4, 5, 75. So 75 is the answer to the third problem. Then which of the following statements is definitely true? So let's check this. Brand M is placed adjacent to brand B. So M is, we have to check definitely true. So M is placed adjacent to brand B. जरूरी नहीं है अगर M यहाँ place हुआ और B यहाँ place हुआ तो this statement is not true, but this could also be true अगर यहाँ पे B place कर दिया. So this is not definitely true first statement. पोजीशन नंबर ऑफ ब्रांड ई इज मोर देन दैट ऑफ ब्रांड ए, तो ई क्या आपका ए के बाद में ही आएगा हमेशा, जरूरी नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो वी कैन नॉट से दिस कंक्लूसिवली, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। 3 ब्रांड्स ए एन आर प्लेस टुगेदर, तो ए एन क्या साथ में आएंगे, इस केस में तो आ रहा है, इस केस में भी आ रहा है, इस केस में आपका नहीं आ रहा, सो दिस इज अगेन नॉट डेफिनेटली ट्रू। ब्रांड सी इज अ पेन किलर टाइप मेडिसिन, पेन किलर के बारे में हमें एक्चुअली में पता है, this C is actually a part of this painkiller type. So fourth statement is actually definitely true, right? I hope you understood the set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.